So let me start recording. So very good evening, everyone. Welcome to today's maths class. Okay. Now we are going to start our today's class. अभी आज आपका एग्जैक्टली चैप्टर 7 का हम रिवीजन करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट रिवीजन, चैप्टर 8 के रिवीजन में जिसको जो भी डाउट है, प्लीज आस्क योर डाउट्स. यस शिरीषा, यू कैन आस्क योर डाउट नाउ. Hello, sir. Yes, Sirisha, tell Sir, me. I have doubt that can we say every rhombus is a rectangle? Every rhombus is a rectangle. No, because rhombus is different and rectangle is different. Right? There is not any similarity between rhombus and rectangle. Rhombus So, आपका parallelogram है, right? Your rhombus is parallelogram. Your rectangle is parallelogram. Every rhombus is parallelogram. Every rectangle is parallelogram. But since every parallelogram cannot be your rectangle, so spatial rhombus can be rectangle अगर आप उसमें सारे angles 90 degree कर दो. In the same way, spatial rectangle can be rhombus अगर उसमें आप सारी side same कर दो. Rhombus और rectangle को जब आप same करोगे, मतलब properties को mix करोगे, you will get square. Okay, Ahad, you can do that. Yes. Good so afternoon. yesterday I asked that every square be a trapezium? So you told something I didn't get that. Okay, see, every square is trapezium. It is yes. Why? Because see, every square is rectangle. Every square is rectangle or not? Every square आपका rectangle भी है, every square rhombus भी है. Yes or no? Every square is your rectangle as well as every square is your rhombus. Right? ये आप हाथ हटा सकते हो. Right? No need for that support. And how is your health now? Are you fine now? Okay. Yes. अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो आप रख सकते हैं नाउ. तो एवरी स्क्वायर इज योर रेक्टेंगल एंड एवरी स्क्वायर इज योर रोम्बस. क्या ये चीज क्लियर है पहले शिरीषा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट. अब उसके बाद वो आपका जो रेक्टेंगल एंड रोम्बस, वो दोनों आपके पैरेललोग्राम होते हैं. एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम एंड एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम. इज इट क्लियर? Yes, sir. कैन आई से एवरी स्क्वायर इज पैरेललोग्राम देन? यस. Yes, sir. Now, can I say every parallelogram is trapezium? Because parallelogram is also a special case of trapezium or not? Yes, sir. बट इन क्लास 8, जो क्लास 8 में आपका चार्ट था, उसमें ये लाइन नहीं दी गई थी. इन क्लास 8 ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम बोथ वर डिफरेंट. बट जब हमने क्लास 11 में ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, सो पैरेललोग्राम वी कंसीडर्ड एज स्पेशल केस ऑफ ट्रेपेजियम. सो क्लास 9 में तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगा, बट आता भी है तो आप इसी को कंसीडर करें कि यस, पैरेललोग्राम इज स्पेशल केस ऑफ ट्रेपेजियम. सो every square is trapezium. Your answer will be yes. Okay. Okay, sir. Okay. Any other doubts? Yes. Nitin is telling sir, but in trapezium only one pair of line are parallel. वही मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बुक के रिस्पेक्ट में चेंज होता है. तो ये जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब क्लास 8 में जो आपको डेफिनेशन दी गई थी, ओनली वन का मतलब ये होता है कि वन पैर पैरेलल है, दूसरे पैर पैरेलल नहीं है. बट इन जनरल केस अगर आपकी एक पैर पैरेलल है, डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम इज one pair of opposite side should be parallel. तो another pair आपके parallel हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर वो parallel है तो parallelogram हो जाएगा, नहीं है तो है ही. Okay, Akshata, no problem. Just be active in chat box. Okay. So Nitin, this is the thing exactly. तो वो अगर क्लास 8 में ये क्वेश्चन होता तो I will tell you no, every parallelogram is not trapezium. But अभी मैं बोल सकता हूँ yes. तो क्लास 8 की बुक में वो दिया गया है. But in general it is yes. Vastav is asking sir, if we say that every square is a rectangle, then the square must satisfy the properties of rectangle. Yes, then the statement will be true. Yes, क्योंकि स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. चेक. रेक्टेंगल में आपके पास प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड शुड बी सेम. ओके, एंड ऑल द एंगल्स शुड बी 90 डिग्री. क्या ये प्रॉपर्टी है? सो एवरी स्क्वायर इज सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ योर रेक्टेंगल. एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल. Is it clear? You can tell me yes if you agree. Okay. So Shriya, where are you now? You are in township only or maybe बाहर native place? Sir, in Vidyanagar. Okay, वापस आ गए. Great. चलो जाते हैं next. Okay, Tanish is asking sir, will we play Kahoot today? Depends. आज हमारा चैप्टर 7 का रिवीजन जब खत्म होता है, चैप्टर 7 और 6 का. So shall I start revision now? आपके मैथ्स की क्लास कब है ना? आपने जैसा कि मैंने ग्रुप में कुछ मैसेजेस देखे, विष्णु सर ने मैसेज डाले हैं. 16 को आपका बायो का पेपर है, राइट? 16 को आपका बायो का पेपर है, तो मैथ्स का पेपर आपका 18 को है, संडे. सर 18th को फिजिक्स है. 20 मैथ्स आपका 20 है, राइट? मैथ्स उसी दिन. सर फिजिक्स 18th को किया है सर. गॉट इट.
Yes, Mansa is asking that, sir, if square is trapezium, then it must satisfy all the properties of trapezium. Yes, trapezium की properties क्या है? One pair of opposite sides should be parallel. क्या यहाँ पे one pair of opposite side parallel है? Right, one pair of opposite side. Either you can consider ABCD or ADBC. Yes, the one pair of opposite side is parallel. Okay, we have foundation class at 3:30 today. No problem. I will take a class till 3:15 only. So a pair opposite beside should not be parallel. नहीं, वही मानसा जब क्लास 8 में आपको डेफिनेशन दी गई थी, वो डेफिनेशन क्या थी कि ओनली वन पेयर शुड बी पैरेलल, राइट? दूसरी पेयर पैरेलल नहीं होनी चाहिए, वो आपकी क्लास 8 की डेफिनेशन थी. लेट मी शो यू हियर इफ आई एम हैविंग क्लास 8 डेफिनेशन. लेट मी चेक कि हाँ दिस ये आपका क्लास 8 है, राइट? क्लास 8 में आपका चैप्टर कौन सा था? फोर्थ चैप्टर था, हाँ या ना? ओके, या फोर्थ नहीं, थर्ड चैप्टर. ओके, हाँ वो इसमें नहीं है क्योंकि वो टाइम पे मैं बोर्ड पे पढ़ाता था. सो दिस इज द थिंग. बट अभी आप जब क्लास 8 अभी आपने छोड़ दिया है, तो ये चीज याद रखो कि ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ एक पैर आपकी पैरेलल होगी. ओनली वन पैर का मतलब क्या होता है? एक पैर पैरेलल होगी, दूसरी पैरेलल नहीं होगी. ट्रेपेजियम की डेफिनेशन में बस ये है कि वन पैर आपकी पैरेलल होनी चाहिए. ओनली वन पैर शुड बी पैरेलल, नॉट मोर देन दैट. मतलब नॉट मोर देन दैट वो ओनली का मतलब है. क्लास 9 के बाद अभी से आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वन पैर पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. तो ये चीज क्लियर है. आज आपका फाउंडेशन क्लास क्यों आ गया? आज तो ट्यूसडे है ना, आपका फाउंडेशन क्लास तो थर्सडे होता है. चेंज हो गया शेड्यूल. सर चेंज जो ऐसा शेड्यूल. ठीक है, अब कब है आपका फाउंडेशन क्लास? सर ट्यूसडे एंड संडे. ट्यूसडे एंड संडे. ओके, तो हम थर्सडे वाले क्लास को एक्सटेंड कर देंगे. ठीक है, ये चीज हो गई. हाँ, new session of chemistry. Okay, no problem. Sakib is asking, sir, is it always necessary that if the adjacent angles are supplementary, then it will be a trapezium? Because in 8 we use that property specifying trapezium only. हाँ, नहीं trapezium only नहीं, trapezium है, फिर trapezium की सारी ब्रांच में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर adjacent angles आपके supplementary हैं तो डेफिनेटली वो दो साइड पैरेलल होंगी ना. ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये जो आपके एडजेसेंट साइड है वो सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री है, तो और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो ये ऑपोजिट साइड्स आपके पैरेलल हो जाएंगी. इज इट क्लियर? ओके, यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर पैरेललोग्राम आल्सो, बट पैरेललोग्राम के लिए आपके दोनों होने चाहिए, ये भी सप्लीमेंट्री होने चाहिए, ये वाले भी सप्लीमेंट्री होने चाहिए. बट सिंस हमें एक पैर के बारे में पता है, इसलिए हम ट्रेपेजियम बोलेंगे. ओके, वास्तव इज टेलिंग अंजना मैम विल टीच ऑन ट्यूसडे. अच्छा, केमिस्ट्री फाउंडेशन आपके अंजना मैम ले रहे हैं? यस सर. अच्छा, ठीक है, तो सर को बोलो फिर मैथ्स फाउंडेशन मैं भी ले सकता हूँ. राइट, सो नव्या शास्त्री इज आल्सो हियर नाउ. हाय नव्या. नेक्स्ट, चलो शुरू करें एवरीवन. शैल वी स्टार्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर 7 नाउ. अभी ये चीजें हैं, और कोई चैप्टर 8 में डाउट? एनी अदर डाउट्स इन चैप्टर 8? चैप्टर 8 में आपके पास दो ही एक्सरसाइजेस हैं, 8.1 एंड 8.2. ग्रेट. So let me start your chapter number 7, or I can say revision of chapter number 7. So जैसे चैप्टर 8 में आपका पहला कंसेप्ट हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में, इट वाज नथिंग बट योर रिवीजन ऑफ क्लास 8 ओनली, कि जितना आप जानते हो पैरेललोग्राम के बारे में, सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, और उसके बेस पे से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. वैसे यहाँ पे चैप्टर 7 में 7.1 में अपने सारा बेसिक्स पढ़ा था ट्रायंगल के ऊपर, जो आप ऑलरेडी जानते हो, और वो सारे बेसिक्स को हमने कंबाइन किया. बहुत सारी चीजें हमने वो भी पढ़ी जो आप नहीं जानते हो, और उसके बेस पे से हमने ये सारी चीजें देखी. ये ना ही आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ना ही आपको मॉड्यूल में दिया गया है, तो ये चीजों को मेहरबानी करके ध्यान रखें पहले. ओके, सो लेट अस सी दिस एंड इसको शुरू करते हैं. सो सृष्टि एसआर, नाखून खाना बंद करो. क्या बायोलॉजी में आपको ये सिखाया जाता है कि नाखून खाओगे तो उससे बहुत एनर्जी आएगी, मैथ्स के सम्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे? ओके, पहले लोग पेन खाते थे ऑफलाइन क्लास में, अभी ऑनलाइन क्लास में नाखून खाने लगे. दिस इज नॉट गुड थिंग. चलो शुरू करते हैं. सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने से पहले हमने ट्रायंगल्स की सारी चीजें रिवाइज कर दी थी. फर्स्ट थिंग वाज
sum of all interior angles of triangle is 180, that is angle sum property in triangle is 180. Types of triangles, अगर sides के base पे देख रहे हो या angles के basis पे देख रहे हो, based on size you are having equilateral, isosceles and scalene triangle. और equilateral triangle में आपकी सारी sides same, isosceles triangle 2 sides same, scalene triangle all sides different. Based on angles, acute angle triangle, right angle triangle और obtuse angle triangle, उसी को हमने थोड़ा डिटेल में एनालिसिस किया. राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल द एंगल्स शुड बी एक्यूट. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज, रिमेनिंग टू एंगल्स विल बी एक्यूट. इज दिस क्लियर? यस यस चंदन, यू कैन डू दैट. ओके, यू कैन टेल मी यस. फिर यहाँ से हमने तीन चीजें अलग अलग पढ़ी थी स्टूडेंट्स. एक थी मीडियन, एक था एल्टीट्यूड और एक था एंगल बाइसेक्टर. और उसको हर एक केस में अलग अलग हमने देखा क्योंकि ये आपको काम आएगा. नॉट ये सिर्फ सारे तीन चीजें, चौथी चीज भी विच वाज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, सो लेट अस एनालाइज देम. सो योर फर्स्ट थिंग दैट इज एल्टीट्यूड, सॉरी मीडियन. पहले हमने देखा था मीडियन. आप मुझे रिवाइज कराओ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो बाय मीडियन? मीडियन के बारे में आपको कितना याद है? रेज योर हैंड. हु विल टेल मी डेफिनेशन ऑफ मीडियन? क्विकली रेज योर हैंड. यस कृष्णा, टेल मी. Krishna, are you speaking? Sir, Yes. median is the midpoint of any triangle. Midpoint of any triangle. Okay, midpoint of any triangle. Anyone else? Yes, Mansa, can you tell me? So median is a line segment which divides a side of a triangle into two equal parts. Agree, line segment which divides the triangle into two equal parts. But what और कोई डेफिनेशन मुझे मीडियन कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? Sir, a median is a line segment which is drawn from a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. Yes, midpoint of side opposite to that vertex, right? मीडियन के लिए आपको कोई भी साइड का मिड पॉइंट लेना है और वो मिड पॉइंट को आपको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करना है. सो मान से योर डेफिनेशन इज कंप्लीटली फाइन, उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट? बट कंस्ट्रक्ट कैसे करना है? So if you connect any vertex with midpoint of opposite side, you will get median. So median is a line segment joining vertex of a triangle with midpoint of opposite side of triangle. Midpoint of opposite side of triangle. चलो, तो यहाँ पे आपका AD median हो सकता है, BE median हो सकता है, CF median हो सकता है. Now, yes वास्तव, अब median always आपके triangle के अंदर होगा. Either it is your acute angle triangle, either it is your right angle triangle, or it is your obtuse angle triangle. Median will be always inside the triangle or not? Tell me. तीनों केस में. Sakib is telling no. Why Sakib? Okay, yes. Okay, is it clear? Median आपका always अंदर होगा. Yes, it will be always inside. Okay. Next, अब अगर median आपका always inside है, मैंने एक चीज आपको पढ़ाई थी, that was about centroid, but वो इतना आया नहीं था. जो आपका यहाँ पे G होगा, centroid is intersection of all three medians. सारे medians को आप intersect करोगे तो आपको centroid मिलेगा. अभिरम्य एंड साईपुरी आप सपोर्ट सिस्टम हटा सकते हो, राइट? आराम से, बस फील फ्री. क्यों इतना लोड देना है बॉडी को, राइट? आराम से. यस, हाथ का यूज करो लिखने के लिए. रिवीजन में सारी चीजें फटाफट लिखते जाओ. तो ये अगर आपके मीडियन है स्टूडेंट्स, तो ये मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलेगा सेंट्रोइड, जो अभी के लिए आपको कोई काम का नहीं है. इट इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. देन ये सेंट्रोइड एग्जैक्टली मैंने क्यों बोला था? जानवी शेखावत सिर दर्द कर रहा है. So this centroid divides your median in the ratio 2:1 from vertex. Okay, can you sit straight? Straight बैठ के देखो, बहुत मजा आएगा. Yes, great, great. आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेट रहेगी. कौन मुझे इसके फायदे बताएंगे? लास्ट टाइम मैंने क्लास में सिखाया था. Yes, Mahi, you are smiling. Can you tell me any of the advantages of sitting straight? याद है कि सब भूल गए? क्या क्या फायदे हैं? आपकी स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट कनेक्टेड होती है. Brain. Yes, brain. Great. तो जो आप पढ़ोगे, इवन जब भी पढ़ने बैठो वो टाइम पे उतना टाइम स्ट्रेट बैठ के पढ़ो और फिर आप वो कर सकते हो. Isn't it विकास? राइट, हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा सपोर्ट देना ही नहीं है. सपोर्ट हटा लो. Isn't it? Sit straight. हाँ, यस भावेश, डोंट वरी, उन सबका मैं कर रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ. हाँ, नो प्रॉब्लम यश, आप स्ट्रेट बैठो, राइट? वो उसका हम कर देंगे. ओके, सो
व्हाट आई वाज टेलिंग हियर कि आपका ये सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। वो 2:1 रेशियो का हमें काम आएगा एक क्वेश्चन में, जो अभी आपके क्वेश्चन में शायद नहीं था। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक आपका आर डी शर्मा का क्वेश्चन है जिसमें ये आना चाहिए। शायद मॉड्यूल में ये हमें काम नहीं आया ना, मॉड्यूल में हमने इसका यूज किया, टेल मी। 2:1 रेशियो का मॉड्यूल में ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें हमने इसका यूज किया हो एवरीवन? नहीं ना? यस। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, जिसमें एग्जैक्टली गार्डन वाला क्वेश्चन है। गार्डन में 3 लोग बैठे हैं, टेलीफोन खेल रहे हैं। तो यस, वो आप जब देखें तब मुझे पूछना डाउट। चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब बस ये रेशियो के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया था, AG/GD 2:1, BG/GE एंड CG/GF। दिस इज योर 2:1 जो हमें काम आएगा फ्यूचर में। नेक्स्ट, altitudes. Now what is the definition of altitude? Who will tell me definition of altitude? Srushti SR, can you speak? Yes, Janvi Shekhawat is telling it is there in circle chapter. Yes, Janvi, yes, got it. मैं सोचूं कराया तो था बच्चों को, कौन से क्लास में कराया था? ग्रेट। तो आपने सर्कल चैप्टर में स्कूल के टाइम ये किया है जानवी? सृष्टि SR, कैन यू टेल मी डेफिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड? क्या आप सुन रहे हो और सिर्फ आप देख रहे हो? Great, great, Janvi. Or who will tell me definition of altitude? Are you typing? Just unmute yourself and tell me. Okay. So shall I tell? Yes, let us give chance to all the other students. Sir. Yes, Janvi, I will tell. Keep your name Janvi S only. Yes. And sir, please give example of centroid that is 2:1. अक्षता, वो example हम direct circle chapter में देखेंगे, अभी देखने की जरूरत नहीं है। And अभिरम्या, yawning is not allowed. अभी पकड़ेगी yawning के लिए। जाओ मुंह धो के आओ फटाफट, 2 minutes. Yawning is not allowed at all in my class. जाओ now. Okay, सृष्टि SR, you can, आप पहले वीडियो ऑफ कर दो, आपको नेटवर्क का बहुत इश्यू आ रहा है तो सृष्टि SR, and be active in chat box और अनम्यूट करके आप बात करो। हाँ, प्रज्वल के अगर आपको भी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, जिसको भी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है वो अपना अपना वीडियो बंद कर दें। ओके, और चैट बॉक्स में एक्टिव रहें। अगर आप चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं रहोगे डेफिनेटली आपकी एब्सेंट लगेगी। So Nitin, can you tell me definition of altitude? Yes, sir. So it is a line drawn perpendicular to a side of a triangle. Very good. A line which is drawn perpendicular to side of triangle from opposite vertex या कोई भी vertex से. Altitude is a perpendicular line drawn from vertex of a triangle to its opposite side. Okay. Now Akshata is telling it will not come in exam. हाँ, ये एग्जाम में नहीं आएगा, आपको तो इसी में इंटरेस्टेड है ना, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसको नहीं पढ़ो अभी के लिए। ओके, सो altitude is a perpendicular line drawn from vertex of a triangle and perpendicular to opposite side, which is perpendicular to opposite side. तो अगर ये आपका acute angle triangle है तो आपका altitude triangle के अंदर ही होगा। If it is your right angle triangle और right angle triangle में अगर आप vertex A से altitude draw कर रहे हो तो वो आपकी एक साइड ही हो जाएगी। Tell me, for right angle triangle वो आपकी एक साइड हो जाएगी। बट अगर आप उसमें राइट एंगल वाला जो आपका वर्टेक्स है बी, जो वर्टेक्स पे आपका राइट एंगल बन रहा है वहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करे वो ट्रायंगल के अंदर आएगा। बाकी दोनों वर्टेक्स से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपकी साइड वर्टेक्स हो जाएगी। एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो देन इट विल बी योर आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। इज इट क्लियर? सो एल्टीट्यूड आपके इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ ट्रायंगल। भवानी, इज इट क्लियर? ओके, yes, you can give me thumbs up is it if it is clear. Okay, then I can count कितने thumbs up आ रहे हैं, कितने लोगों को पता चल रहा है। yes, great, great. Okay, next, angle bisector. अब एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन कौन बताएगा क्विकली? यस, आदित्य भारद्वाज, कैन यू टेल मी डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्विकली? हमें पूरा चैप्टर का रिवीजन खत्म करना है। Yes, जयति पहले से ही आपका राइट रेडी थे। Yes, Puneet, definitely you can speak. Tell me. Sir, a ray drawn from its opposite, sorry, a ray which divides an angle into two equal parts is an angle bisector of a Very triangle. good, very good. कि आप कोई भी एंगल से रे ड्रॉ कर रहे हो, इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो कि वो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट? संचित, सीट स्ट्रेट, सपोर्ट लेना छोड़ दो। Yes, you can turn off your virtual background as well. तो अगर आप एंगल से ऐसा ड्रॉ कर रहे हो कि जो आपके एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है
that is called your angle bisector. Angle bisector is a ray which divides an angle into two equal parts. जैसे अगर मैं ax ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाएंगे, यहाँ पे ax, इधर दो पार्ट्स, यहाँ पे ax, इधर दो पार्ट्स, एंड डेफिनेटली वो आपके अंदर के पार्ट में होगा. यस, आई गॉट डेफिनेशन फ्रॉम आदित्य भारद्वाज एज वेल एंड अनघा एज वेल. Okay. Now let us see next. Perpendicular bisector. Who will tell me definition of perpendicular bisector? Vaishnavi, can you speak? Can you tell me definition of perpendicular bisector? Are you there? Tapish is telling that my voice is breaking. Is it so? No, it is clear. ओके जिनके लिए भी राइट अगर मेरी वॉइस क्रैक कर रही है तो नेटवर्क का इश्यू हो रहा होगा. सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम. नहीं तो जब आप वीडियो ऑन करते हो तो आपको थोड़ा अच्छा वाला नेटवर्क चाहिए, तो वो टाइम पे आप वीडियो बंद कर सकते हैं. चलो क्विकली. यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. साकिब, यस, साकिब ने लिखा है लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड बाइसेक्ट इट. तो ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि आपकी लाइन को परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करे, which is bisecting your line as well as it is perpendicular to your line. तो अगर a line which is perpendicular to given line and bisect given line is called perpendicular bisector. कि आपके लाइन को perpendicular भी है और उसको bisect भी कर रहा है, which is called perpendicular bisector. Is it clear, Radhika? Okay, everyone? Great. Next. अब इसके बाद वाला क्वेश्चन. अब ये चीजें कुछ हमने देखी थी प्रॉपर्टीज. इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मुझे कौन बताएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे सेम होते हैं. यस और नो अफशा? क्या आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे सेम होते हैं? अफशा, आर यू देयर? यस. आशुतोष बोलो, क्या ये सारे सेम होते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल? हेली, सहाना, Sahana, yes. Tell me, क्या ये सब सेम है? Everyone. आशुतोष आप कुछ बोल रहे हो बट आपकी आवाज नहीं आ रही. Are you unmuted? Okay. Jayati is telling no. कुछ लोग no बोल रहे हैं, कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं. Sir, equilateral triangle is nothing but a regular triangle, right? Yes. इट इज रेगुलर ट्रायंगल क्योंकि उसमें आपके एंगल्स भी सेम हो जाते हैं और साइड भी सेम हो जाती हैं. सो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सारे सेम होते हैं, राइट? सो नव्या शास्त्री, आर यू गेटिंग बोर्ड? कैन यू टेल मी अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल? सर, टू साइड्स विल बी इक्वल. वेरी गुड, टू साइड्स विल बी इक्वल. और क्या उसमें आपके मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम होंगे? यस सर. ऑलवेज और कोई पर्टिकुलर कंडीशन? सर, जब दो साइड बेस साइड नहीं इक्वल नहीं होता. वेरी गुड. मतलब आपके ये जो आपके कॉमन वर्टेक्स, दोनों कॉमन साइड में से जो आपके कॉमन वर्टेक्स में से आप मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके ऑपोजिट साइड का ड्रॉ कर रहे हो तो वो सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी. इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये आपका बस सिंपल सा रिवीजन. और ये मैंने कुछ चीजें आपको दिखाई थी एक ही फिगर में कि इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है. हाउ कैन यू ड्रॉ मीडियन, हाउ कैन यू ड्रॉ एल्टीट्यूड, हाउ कैन यू ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑल दिस फोर इन सिंगल फिगर. कि इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है. एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और एनी पॉलीगॉन इज 360, वो आपको ऑलरेडी पता है. तो ये आपका 8.1 के थियरी पार्ट का रिवीजन. कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे बट कॉन्ग्रुएंसी पे जाने से पहले इतना जो हमने रिवाइज किया है उसके बेस पे से कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं. सो आर यू रेडी टू सी सच क्वेश्चंस एवरीवन? नाउ चैप्टर नंबर 7 इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. आपने जो आपकी बुक में वो टाइम पे सब ये लिखा है, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, रिवीजन के टाइम पे वो सारी बुक्स निकाल के रखो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ भी लिखना बाकी हो तो उसमें आप प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं. जो भी आपका लिखना बाकी हो वो आप वहां पे लिख सकते हैं. जो वो टाइम पे आपने मिस किया वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं. ओके, सो वो सारी चीजें निकाल के रखो. यस जानवी पी, आर यू गेटिंग बोर्ड? नाउ
7.1 इन क्लास एक्सरसाइज, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B and C मीट एट O if angle A is 70 degree find BOC. Yes, very good. तो BOC हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं एवरीवन? A plus B plus C 180, जिसमें A आपको 180 दिया गया है तो यू कैन गेट B plus C as 110. Since it is revision, मैं क्विकली जाऊंगा. Now you know B plus C is 110. अब आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ें तो एंगल B का बाइसेक्टर है BA एंड एंगल C का बाइसेक्टर है नॉट BA, शायद यस BX लिया है और यहाँ पे CY. तो अगर आप XBC एंगल लिख रहे हो या OBC एंगल लिख रहे हो, इट विल बी हाफ ऑफ एंगल B और नॉट? क्या आपके एंगल B का हाफ हो जाएगा? इन द सेम वे यहाँ पे एंगल OCB, दिस विल बी योर हाफ ऑफ एंगल C. यू कैन टेल मी यस? ओके, तो ये हाफ ऑफ एंगल B, हाफ ऑफ एंगल C. एंगल B प्लस एंगल C आपके पास ऑलरेडी 110 है. इसमें से अगर आप हाफ कॉमन निकाल रहे हो, यू विल गेट B प्लस C, वो 110 रखोगे, सो यू विल गेट 55 डिग्री. 180 minus 55 will give you your answer, that is angle BOC, right? And 180 minus 55 आपका आंसर क्या आ रहा है? 125. So this was your question number 2. Okay, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. चलो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एवरीवन. दर्शन, सपोर्ट हटा दो, सिट स्ट्रेट. Great. Question number 4. Can a square of side 4 cm be congruent with a rhombus of side 4 cm? अब इसके लिए आपके पास congruent का हम पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं. तो congruent में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि कोई भी दो शेप को मैं कब बोल सकता हूँ वो congruent है या congruency है? जब वो दोनों चीजें, आप जो भी दोनों जियोमेट्री देख रहे हो, आइदर इट इज ट्राइंगल, सर्कल, आइदर इट इज स्क्वायर, जब उनके शेप सेम हो और साइज सेम हो, हाँ या ना? ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ट्राइंगल के साथ. हाँ, सुपर इम्पोज, एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर अगर आप सुपर इम्पोज कर पा रहे हो, यू कैन टेल दैट यस बोथ दिस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. या फिर एक क्वाड्रिलेटरल को दूसरे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कर पा रहे हो तो. और इन शॉर्ट वो तभी आप कर सकते हो जब वो डुप्लीकेट हो. डुप्लीकेट मीन्स जुड़वा. आपके सारे ये सारी मूवीज के नाम मिल रहा हूँ, डुप्लीकेट, जुड़वा, लाइक दैट, कि आपके सारे पैरामीटर्स सेम हो. ये आप तभी कर सकते हो जब सारे के सारे पैरामीटर्स सेम हो. सारे पैरामीटर्स आपके कब सेम हो सकते हैं? जब शेप एंड साइज, सारे साइड सेम और एंगल सेम, इजंट इट? सभी के सभी साइड सेम एंड एंगल सेम, तब आप बोल सकते हैं यस इट इज योर इक्वल. तो सुपर इम्पोज कर सकते हैं, वो ओवरलैप ईच अदर. सो दिस इज कॉल्ड योर कॉन्ग्रुएंसी. और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें देखी थी. अब उसके ऊपर से ये आपका क्वेश्चन है कि क्या आप रोम्बस और स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो? Can a square of side 4 cm be congruent with a rhombus? स्क्वायर और रोम्बस के लिए वो कब हो सकता है? नो. याशिला कब से बोल रही है नो? बिकॉज आपको पता है कि रोम्बस में सिर्फ डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं. इवन ऑल एंगल्स आपके उसके 90 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते रोम्बस में. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो 90 होंगे, बट स्क्वायर में तो वो 90 है. तो हर बार वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज रोम्बस. ये सारे हमने वहां पे देख लिया था. Yes, Tapish is telling that my voice is not clear. Tapish, just turn off your video. Okay, Tapish, क्या आपका वीडियो ऑन है? You can turn off your video. शायद उसकी वजह से ऐसा आ रहा हो. Yes, Nitin. Sometimes it would be true. Agree. Sometimes वो आपका true हो सकता है. Sometimes आपका एंगल ऑफ वो एंगल ऑफ रोम्बस कैन बी 90 डिग्री, या मैं बोलूँ सारे के सारे एंगल उसके 90 डिग्री हो जाएंगे, तब वो ट्रू होगा. तब आपका स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर विल बी इक्वल टू रोम्बस ऑफ साइड 4 मीटर और 4 सेंटीमीटर, जब दोनों जगह आपके 4 सेंटीमीटर हैं. यस, बट दिस इज द थिंग. ओके, सो शशांक, यू कैन टर्न ऑन योर वीडियो. शशांक एंड यहिया. चलो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे. नेक्स्ट, ये मैंने पूरा चार्ट आपको दिखाया था जो हमने चैप्टर 7 में ऑलरेडी देखा है. ओके, चैप्टर 8 में जो हमने देखा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ से शायद आपके प्रूव दैट वाले शुरू हुए थे. इफ एनी पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर ABCD, अगर आपके स्क्वायर ABCD के अंदर कोई भी पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट कैन बी एनीथिंग, एंड DPQR इज अनदर स्क्वायर, अगर DPQR अनदर स्क्वायर है, then prove that AP equal to CR. Yes, wait Krishna, I will reply you in a while. Okay, अब आपको ये प्रूव करना है AP equal to CR. अब यहाँ से आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन शुरू हुए थे
मैंने आपको बोला था हर एक प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, टेल मी। हमारे 2 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, हर एक प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में क्या करना है? यस जानवी, यस, कैन यू टेल मी? यस अनघा, यू आर राइट। ओके जानवी, यस, हर एक प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हमारी कॉमन प्रोसीजर क्या होगी, कैन यू टेल मी? आर यू टाइपिंग? Yes, sir. यस, ओके, टेल मी। आपको ये Sir, सब first, लग रहा है क्योंकि सब आता है इसलिए जस्ट आस्किंग कैजुअली। first we should see that which part belongs to which triangle. वेरी गुड। जो आपको इक्वल प्रूफ करना है वो कौन से ट्राइंगल के पार्ट है? फॉर एग्जांपल एपी और सीआर, तो एपी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, सीआर कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, वो ट्राइंगल आपको आइडेंटिफाई करना है। सो वेरी गुड जानवी, यस। एंड नेक्स्ट स्टेप विल बी, हु विल टेल मी नेक्स्ट स्टेप? जानवी पी, कैन यू टेल मी नेक्स्ट स्टेप? तो अभी शायद दोनों जानवी हमें मदद कर रहे हैं। सो जानवी एस ने बोला कि हमें 2 ट्राइंगल को पसंद करना है। उसके बाद जानवी पी, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आर यू टाइपिंग इन चैट बॉक्स और आर यू स्पीकिंग? यस जानवी पी, यू कैन डू दैट अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, बट बी एक्टिव इन चैट बॉक्स एज यू आर ऑलवेज एक्टिव। यस, ट्राइंगल फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे? यस हेली, कैन यू टेल मी? यस मे आई? यस यस, बिल्कुल चांस मिलेगा डेफिनेटली। मैं बैलेंस कर रहा हूँ कि सबको चांस मिले तो। ओके यस नितिन, बट आई वांट यू स्टूडेंट्स टू स्पीक। हेली, कैन यू टेल मी? ये 2 ट्राइंगल हमने आइडेंटिफाई कर दिए, उसके बाद का स्टेप क्या होगा? याद नहीं आ रहा? अवया, कैन यू टेल मी? मे आई? यस यस, मैंने बोला थोड़ा मैं मैनेज कर रहा हूँ कि सबके चांस मिले। डेफिनेटली आई विल गिव यू चांस। वैष्णवी, कैन यू टेल मी? ये 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? अच्छा प्रहलाद इज आस्किंग, ओह सॉरी प्रहलाद, मैं पता नहीं चला। यस प्रहलाद, टेल मी। मैं सोचू प्रहलाद चैट बॉक्स में क्यों लिख रहा है आई एम प्रहलाद। यस प्रहलाद, टेल मी। यस अवया इज आस्किंग वी शुड ड्रॉ देम सेपरेटली। नहीं, सेपरेटली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं सेपरेटली ड्रॉ करता था, आपको सेपरेटली ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। सो प्रहलाद, कैन यू टेल मी? Sir, we should see which congruency to apply, sir. यस मतलब हमें वो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने के बाद देखना है कि क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं। वी शुड ट्राई टू फाइंड कॉन्ग्रुएंसी बिटवीन देम। ओके सो यहाँ पे ट्राइंगल एपीडी एंड इन ट्राइंगल डीसीआर, वो दोनों ट्राइंगल हमने पसंद किए हैं। अब वहां पे हर क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो एपीडी एंड सीडीआर, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था? ओके यस डेफिनेटली वैष्णवी, कि वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन से साइड और एंगल सेम है वो हमें फाइंड करना है। सो ये आपका एपीडी एंड डीसीआर, सिंस ये स्क्वायर है तो आपकी यहाँ पे कौन कौन से साइड सेम हो सकती है? टेल मी, क्या एडी और डीसी सेम है सिंस इट इज स्क्वायर? यस और नो? सिंस अंदर का क्वाड्रिलेटरल भी सेम है, कैन आई से डीपी इक्वल टू डीआर? ये भी आपके सेम है, बट अब उसके लिए आपको चाहिए कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हम 7.1 में कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़े थे। यस नव्या शास्त्री, आई विल गिव यू चांस एज वेल, बट वेट नाउ। सो हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था। अगर कोई एंगल दूसरे एंगल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो हम इस तरीके से लिखते थे। एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट के लिए ये आपका सिंबल होता था, दिस मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू, मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इज कॉन्ग्रुएंट टू। और अगर कोई पॉइंट और साइड आपको पर्टिकुलरली मिल रहे हैं कि कौन सा पॉइंट कौन सा वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में कॉन्ग्रुएंट है या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, वहां से आप पूरा ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF लाइक दैट। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने कुछ क्राइटेरिया देखे थे कि कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कैसे होते हैं, और हमने उससे पहले CPCT लिखा था कि ओके जानवी पी, गॉट योर पॉइंट। तो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, इसका शॉर्ट फॉर्म है CPCT, जिसमें पूरा का पूरा आपका सेंटेंस आ जाता है। एंड उससे पहले हमने देखा था एग्जाम 7.1 साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कि अगर कोई भी 2 ट्राइंगल के बीच में 2 साइड सेम है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल सेम है, इफ 2 साइड्स आर सेम एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज सेम, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला पूरा आपका साइड एंगल साइड पे था। एंड ऐसे हमने और कौन कौन से क्राइटेरिया देखे थे भावेश साइड एंगल साइड के अलावा? कैन यू टेल मी दोस क्राइटेरिया?
भवानी कैन यू टेल मी? भवानी को यॉर्निंग आते आते रुक गई. वेरी गुड भवानी. कैन यू टेल मी दोस क्राइटेरिया? यस, यशस ने ऑलरेडी चैट बॉक्स में टाइप कर दिया है, साकिब ने टाइप कर दिया है. यस, भवानी ने टाइप किया है. यस, ओके, यू ऑल स्टूडेंट्स आर राइट. अफशा, नितिन, तो वो सारे क्राइटेरिया हम देखेंगे. यस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 एंड आरएचएस. इसमें से आपके कोई भी क्राइटेरिया आ सकते हैं, बट कोई भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको खुद से बनाना नहीं है. कोई नया कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपको बनाना नहीं है. क्या एंगल 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 ऐसा कोई क्राइटेरिया है? डू वी हैव सच क्राइटेरिया? क्या साइड साइड एंगल ऐसा क्राइटेरिया है? साइड साइड एंगल, श्रिया, क्या साइड साइड एंगल क्राइटेरिया है या नहीं? कुछ भी मत बोलो, याद करो, पहले पढ़ा ही नहीं है. याद ही नहीं करते हो अच्छे से, पढ़ना है नहीं. साइड साइड एंगल यूज किया था कि नहीं, बोलो, टेल मी. कितनी बार यूज किया है? पूरा 8.4 साइड एंगल साइड यूज किया है सर. कौन सा यूज किया है? साइड एंगल साइड. साइड साइड एंगल किया था हमने, याद करो. एंगल एंगल साइड किया था, फिर साइड साइड एंगल भी किया था. यस और नो? नहीं सर. नहीं, चलो ग्रेट, याद है आपको, सब बच गए. नहीं तो अभी 5 बार 10 बार जाते. ओके, ठीक है, ग्रेट. सो यस, वो आपका सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है, विच इज योर RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, जिसमें दो साइड और एंगल को हम लेते हैं विथ रिस्पेक्टिव इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन. कि जरूरी नहीं है कि वहां पे एंगल आपका दोनों साइड के बीच में ही आए. चलो, सी हियर नेक्स्ट. तो उसी बेस पे ये आपका क्वेश्चन था. एंगल बीच का आपको प्रूफ करना है. यहाँ पे आपके दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? चेक. इन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल है ADP, और यहाँ पे आपका इंक्लूडेड एंगल है CDR. तो पहले आपको ADP और CDR को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा. आप ADP और CDR को आप कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हो? तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया था कि जो आपका ADP है वो एक्चुअली ADC में से आप PDC माइनस कर सकते हो, हाँ या ना? ओके. और यहाँ आपके पास जो आपका आई कैन से जो CDR आपको प्रूफ करना है, CDR आप पूरा PDR में से PDC माइनस कर सकते हो. मतलब दोनों में से आपको बस PDC माइनस करना है. एंड पूरा होल एंगल 90 डिग्री है, सिंस दिस इज आल्सो स्क्वायर एंड दिस इज आल्सो स्क्वायर. सो 90 माइनस PDC, 90 माइनस CDR. ओके, तो वो दोनों आपके सेम हो जाएंगे. वो दोनों जैसे आपके सेम हो गए, उसका आप यूज करके साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो. वो अप्लाई करने के बाद ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. सिंस दिस आर कॉन्ग्रुएंट, यू कैन से AP and CR आर सेम. तो ये सारी चीजें आपको करनी है. नाउ यशस इज टेलिंग दैट सर ट्रिपल ए इज पॉसिबल, वी नो वन साइड. हाँ, बट एक साइड आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो आपका एंगल एंगल साइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ट्रिपल ए में से 2 एंगल आपको पता है, एक साइड पता है. Now, if D is midpoint of the hypotenuse AC of a right angle triangle ABC, prove that BD equal to half AC. ये वाला एक क्वेश्चन था आपके पास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है. माही is telling that screen is frozen. Is it so? जयति, क्या स्क्रीन फ्रीज हो गई है? नहीं. Okay. Jayati is telling no, Mahi, and all the other students are also telling no. So Jayati, can you tell me how we can do this question? If D is midpoint of hypotenuse AC of right angle triangle ABC, आपको ये प्रूव करना है कि BD आपका हाफ AC है. तो पहले क्या यहाँ पे आप ये सोच सकते हो स्टूडेंट्स, दिस इज योर BD. यस. नाउ तपिश, कैन यू हियर मी क्लियरली? क्या अभी आवाज अच्छे से आ रही है? हेली, सब पता चल रहा है ना रिवीजन में? You are not in tension, na, Heli? Everything is fine? Okay. Janvi, got it? चलो यहाँ से शुरू करते हैं. ये दोपहर वाली क्लास है, इसलिए सबको नींद आती है क्या? हाँ, जयति हाँ बोल रही है. जानवी पी ऐसे सो गई, सॉरी जानवी पी नहीं, सहाना तो पूरा ऐसे दीवार पे सपोर्ट ले रही है. दीवार से दूर हो जाओ सहाना, पूरा सो रहे थे आप वहां पे. स्ट्रेट बैठो एकदम, दीवार को सिर्फ पीठ का सपोर्ट दो, ऐसे साइड से नहीं जाना है. ओके, सिट स्ट्रेट. मतलब आज तो कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ था तो हर रोज ऐसे कितने लोग सोते होंगे? ये नहीं चलेगा ना.
We can do one exercise to keep you awake as well. बेचारी भवानी कब से ऐसे सपोर्ट लेके बैठी है. Okay. Okay, Janvi P, I got it. So, okay, one student is telling that, sir, we are feeling sleepy in every online class. Okay, got it. Online classes are boring. Okay, got it. और मैं यहाँ पे पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास को कैसे इंटरेक्टिव बनाया जाए. नो प्रॉब्लम. चलो, वी कैन डू वन थिंग, आप सबको नींद से जगाने के लिए. ओके तपेश, आई गॉट इट. सो are you ready for that exercise, everyone? We can do this exercise. आया ना? चलो, आपने कौन सी एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है? बिकॉज देर आर सो मेनी एक्सरसाइजेज. हैंड मैग्नेट वाली क्या मैंने आपको कराई थी? यस सर. हैंड मैग्नेट सबको कराई थी स्कूल में? नहीं सर, नहीं स्कूल. स्कूल में कोई एक क्लास में लास्ट ईयर ए और बी में से 8A 8B हैंड मैग्नेट. दोनों क्लास एक ही साथ थे सर. कंबाइन. हाँ, राइट राइट राइट. जब हम लास्ट में कंबाइन क्लास लेते थे सिलेबस खत्म करने के लिए. सर क्रिसमस डे के दिन था सर. कोई याद नहीं आ रहा है सर. हाँ, कंबाइन क्लास करवाए थे सर. कंबाइन क्लास के कम स्टूडेंट आए थे. कंबाइन क्लास के कम स्टूडेंट आए थे. राइट. ओके. हाँ, यस कृष्णा, यू आर विजिबल नाउ लाइक थानोस. ओके. सो चलो. So are you ready to see that? Are you ready to do that exercise, everyone? Let us do hand magnet exercise today, right? चलो quickly. तो मैं आपको बोलूंगा वो चीजें आपको करनी है. ये बस आपको नींद से जगाने के लिए. इसके बाद हमारे पास है हाफ आवर जिसमें हमें बहुत सारी एक्सरसाइज का रिवीजन करना है. इसके बाद मैं रिवीजन थोड़ा स्पीड में जाऊंगा. टोटल 3 एक्सरसाइजेस हैं. 2 to 3 मिनट्स में हम ये एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे. ओके. सो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज. So yes, everyone, you all are here. I can see you. What you can do, जो मैं आपको बोलूंगा वो आपको करना है. सबसे पहले आपके हाथ में जो भी पेन पेंसिल है वो सब रख दो साइड पे. सब साइड पे रख दो. अब आपको जागना है एवरीवन. और हैंड मैग्नेट एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दिखाना चाहता हूँ जो आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, जो अभी तक हमने यूज नहीं की. और जो जितने लोग वर्चुअल बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं बंद कर दो अभी के लिए. नाउ सी हियर, अभी आपको जो करना है, तो कई बार हम ये चाहते हैं कि हम एग्जाम में जो भी लिख रहे हैं हमारी स्पीड बढ़ जाए और एकदम हम फास्ट लिखने लगे. हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस. राइट, कि हमारी स्पीड बढ़ जाए और लाइक फ्लैश. ओके. और इस तरीके से हम पूरा लिख दें. उसके लिए भी कुछ हैंड एक्सरसाइजेज हैं. एग्जैक्टली आप अगर एग्जाम में ऑब्जर्व करो तो स्टार्टिंग में जब आप लिखना शुरू करते हो तब आपकी स्पीड थोड़ी ऑप्टिमम होती है, थोड़ी ज्यादा होती है. धीरे धीरे एंड तक आते आते आपकी स्पीड कम हो जाती है. हाँ या ना? राइट, आपके हाथ थक जाते हैं. होमवर्क करते करते तो आपका एक्सपीरियंस होगा ही. अनटिल एंड अनलेस अगर आप टाइम देख रहे हो, अरे अरे बाप रे इतना कम टाइम है, इतना सब लिखना है, और फिर आपकी हैंड राइटिंग पूरी खराब. मैं जब आपके पेपर चेक करता हूँ स्टार्टिंग में हैंड राइटिंग एकदम मस्त, क्या लिखा है, और एंड में हैंड राइटिंग क्या लिखा है कुछ पता नहीं चल रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं. इसके ऊपर भी आपके पास कुछ एक्सरसाइजेज हैं. एग्जैक्टली ये जो आपके फिंगर के और आपके फिंगर्स में जितने भी आपके बॉन्स होते हैं, राइट, ये आपके सारे जितने भी जॉइंट्स होते हैं, आप सिर्फ इस तरीके से जब लिखते जाते हैं इधर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, तो क्या होता है कि ये सारी चीजें आपके बॉन्स वहां पे स्टक हो जाते हैं. तो उसको भी एक्सरसाइज की जरूरत है. तो ये मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करा रहा हूँ. 2 एक्सरसाइज है उसमें. सेकंड थिंग, उसके लिए पहले आपको हाथ आपके स्ट्रेट रखने. एकदम स्ट्रेट रखो, एकदम स्ट्रेट. आप खुद फील करोगे एक्सरसाइज. एकदम स्ट्रेट, आप सबके हाथ मुझे दिखने चाहिए. यस, ऐसे सपोर्ट मत दो. भगवान ने आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाया. ये इस गर्दन को सपोर्ट देने के लिए ऐसा है. क्या कभी आपने देखा है कि लोग ऐसे अपनी गर्दन को साथ में लेके चल रहे हैं अलग से? राइट, वो ऑलरेडी सपोर्ट है. आपको कोई अलग से सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है. जस्ट आपके हाथ एकदम आगे कर दो, स्ट्रेट. ओके, ग्रेट. अब मैं आपको जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसमें पहले ये फर्स्ट एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर दिस. इसमें आपको क्या करना है, हाँ, कैमरा आपकी तरफ से कर दो. वो टाइम पे आप जैसे कैमरा सेट करना है आप सेट कर दो. मेन चीज ये एक्सरसाइज करना है. ओके. अभी एक्सरसाइज में आपके हाथ आप आगे कर दो. सबसे पहले हाथ सबके आगे हो गए. अब आपको आपके फिंगर्स को ऐसे दबाना है. अब डायरेक्ट ऐसे नहीं दबाना है, समझो. एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है. ये अलग ये अलग. डायरेक्ट ऐसे नहीं दबाना है. जस्ट यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर हैविंग स्टोन इन योर हैंड. कि आपके पास स्टोन है, बहुत ही बड़ा पत्थर है, और इस तरीके से एकदम स्ट्रांगली आप उसे दबा रहे हो. राइट, यू आर थानोस नाउ, यू आर हल्क नाउ, यू आर थॉर नाउ.
ये कुछ हाथ में रखना नहीं है, रेड वो स्केल निकाल दो, स्केल निकाल दो और एकदम जोर से दबाओ, एकदम जोर से। हाँ, कुछ हाथ टूटेंगे नहीं, एकदम जोर से दबाओ, धीरे धीरे एकदम, ये स्टोन को दबा रहे हो एकदम, पूरा गुस्सा निकाल रहे हो स्कूल का, ऑनलाइन क्लास का। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है कोरोना ने, आपके हाथ में कोरोना है, दबाओ उसको एकदम जोर से। एवरीवन पूरा गुस्सा निकालो। क्या ये पूरा फील कर पा रहे हो जो आपके जॉइंट्स में टिक 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 हो रहा होगा? एवरीवन कैन यू फील दैट? ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे गुस्सा नहीं निकालना है माही, ऐसे स्ट्रेट करके। एवरीवन आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ टिक 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 आवाज सुन रहा है? फिंगर्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, सी? ओके, यस, isn't it? Okay, so this is your first exercise. इससे आपकी फिंगर्स जो हैं वो फिंगर्स आपकी खुल जाएंगी। तो आप बीच में जब भी 2 क्लास के बीच में गैप हो, आप एग्जाम में 3 घंटे की आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम में आप जब ये लिख लिख के थक जाते हो तो बीच में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, बीच बीच में आप लिख के थक गए, 3 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, आप थोड़ा ही 5 मिनट करके फिर वापस शुरू कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड थिंग, वो अच्छे से करोगे तो थकान निकलेगी, नहीं तो और थक जाओ। चलो ये एक हो गया। नाउ सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज। अब ये आपका हो गया, अब इसको राइट क्या बोलते हो आप इसे? हाँ, ब्रिस्ट, ब्रिस्ट वॉच। उससे पहले आपकी ब्रिस्ट वॉच निकाल दो। हाँ, सो आशुतोष इज टेलिंग सर मेरी फिंगर स्वेलिंग है एक्चुअली। ओके, हाँ तो मत करो। हाँ, जिसके फिंगर स्वेलिंग है आप कुछ मत करो। हाँ, नेक्स्ट, अब ये ब्रिस्ट पे आप फोकस करो स्टूडेंट्स। ब्रिस्ट पे अब आपको कैसे करना है, डायरेक्ट स्टार्ट मत करो प्रज्वल, अभी मैंने सिखाया नहीं है, वेट, डायरेक्टली मत करो। अभी मैं आपको ब्रिस्ट की एक्सरसाइज दे रहा हूँ। सी, अब आपके जो आपके हैंड्स हैं, ये आपके थंब, इसको अंदर डाल दो। ओके, एंड हैंड्स फोल्ड कर दो। एवरीवन थंब अंदर डाल दो और हैंड्स फोल्ड कर दो। कर दिया? अब इसको ज्वाइंट करो यहाँ पे, स्ट्रेट, हाथ स्ट्रेट रहना चाहिए, स्ट्रेट। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओ। अब यहाँ पे गलती क्या होती है समझना, जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाओगे ना, आपका हाथ यहाँ से बैंड होगा, आपका हाथ यहाँ से बैंड होगा, वो बैंड नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट ही रहना चाहिए। ओके, अब जितनी बार आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हो उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज, ये फिक्स, ये जॉइंट रहना चाहिए। 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3। समर्थ आप गलत कर रहे हो, जॉइंट रखो, जॉइंट। 3 2 1। सॉरी, प्रहलाद इज टेलिंग हैंड्स आर पेनिंग। वो करेंगे जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी बॉडी पेन करती है, बट एक्चुअली वो स्ट्रेचिंग हो रहा है आपकी बॉडी का, पता चल रहा है एवरीवन? तो आपके फिंगर्स इससे खुल जाएंगे, इससे आपकी रिस्ट खुल जाएगी। एंड वन मोर थिंग, जब आप लिखते हो आपके शोल्डर्स भी आपको काम आते हैं, बट आपको पता नहीं चलता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी योर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर। सी हियर, सो एवरीवन रेडी? ओके, एंड ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ऑनलाइन क्लास में मुझे पता चल रहा है सब अपनी आंखों को ऐसे 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 पूरा तोड़ दोगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ऐसे ये पूरा आंख पूरा निकाल के, इट इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट। देखो संचित, अगेन मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ योर बॉडी। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आंखों में, डायरेक्ट टच कभी भी मत करो। ओके ना, चलो अब शोल्डर के लिए, अब शोल्डर के लिए आपको क्या करना है, सी, ऐसे आपको इधर हाथ रख देने, ये हाथ आपके यहाँ से मुड़ने नहीं चाहिए, राइट? हाँ, ये जो आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो तब करते ही हो। हाँ, सो अब यहाँ से ऐसे आपको करना है, यस, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो। पहले आपका ये पूरा क्लॉकवाइज, पीछे से अच्छे से करना, राइट? यस, 1, अगेन 2, अगर 3 बार क्लॉकवाइज कर रहे हो ग्रेट। अब 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। ओके, पटाखे फूट रहे हैं, टक 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 आवाज आ रही है पीछे से मसल। हाँ, दर्द तो करेगा ही। ओके, 1 2 3, अगेन, हाँ, फिर अगेन 4 5 6। तो मेरा भी 2 क्लास के बीच वाला काम अभी हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, अब ये आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक की और आईज की। तो ये जब आप 2 क्लास के बीच में कर लोगे, यू विल फील फ्रेश। नेक की एक्सरसाइज आपको पता ही है, ये जो लोग स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो पहले आप करते ही हो। ओके, हाउ कैन यू डू दिस नेक एक्सरसाइज एवरीवन? पहले जस्ट आपको इसको फिक्स कर देना है, राइट? ये आपके फिक्स रहना चाहिए। हाँ,
यस, वन ऑफ द स्टूडेंट इज टेलिंग दैट सर लग रहा है वॉर खेलने जा रहे हैं. हाँ, दिस इज वॉर ओनली, वॉर ऑफ योर लाइफ. सर इधर, राइट, नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट करते हो. हाँ, इसको पहले शोल्डर को फिक्स रखो फिर करो. कुछ लोग ऐसे ही करते हैं. हाँ हाँ, जिसको जो भी सर्जरी है प्लीज आप वो वाली एक्सरसाइज ना करें. हाँ, सो 1 2 3 4 एंड एक बार क्लॉकवाइज, पूरा गोल नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज. कुछ लोग ऐसे वो भूत वाली मूवी देख के ये पूरा गोल घुमाते हैं. पूरा नहीं, डोंट ट्राई दैट. बस ऐसे थोड़ा इधर और इधर, ऐसा 2-3 बार करो. अब देखो आपके ब्रेन में ब्लड आ जाएगा और सारी चीजें. राइट नाउ यू कैन फील अफ्रेश. नींद उड़ गई एवरीवन? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस. अभी नींद उड़ गई? शैल वी रिज्यूम आवर क्लास नाउ? सर नींद आया ही नहीं सर. हाँ, ओके. वन स्टूडेंट इज टेलिंग दैट फीलिंग मोर स्लीपी. तो आप कुछ नहीं कर सकते. ओके, नहीं ये गलत है, ये सब चीटिंग है, आप चीटिंग कर रहे हो. हाँ, हाथ की नींद उड़ गई. ओके, चलो शुरू करें एवरीवन. तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हो. मेन चीज आपका सिटिंग पोस्चर. और भी बहुत सारी चीजें. पूरा दिन बैठ बैठ के आप बोर हो जाते हो तो थोड़ी बैक की एक्सरसाइज एंड कमर की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं बिटवीन द क्लासेस. थोड़ा स्ट्रेचिंग आपका पूरा दिन बना देगा. बाकी आई एक्सरसाइज हैं और वो सारी चीजें तो है ही. आई एक्सरसाइज हो गई, हैंड मैग्नेट एक्सरसाइज हो गई, वो सब करेंगे नेक्स्ट टाइम. अभी के लिए इतना. ओके, सो लेट मी रिज्यूम फ्रॉम हियर. अब ईच एंड एवरी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन मैं कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा. सो मैं सारे क्वेश्चंस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ. इज इट क्लियर नाउ? राधिका फीलिंग फाइन नाउ? अभिरम्या नींद उड़ गई? सहाना, क्या अभी कोई सपोर्ट की जरूरत है? आर यू देयर सहाना? नो? चल, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. यू कैन ड्रिंक वाटर एज वेल. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अगर डी आपका मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस एसी का, आपको प्रूव करना है बी डी इक्वल टू हाफ ए सी. अब ए सी का हाफ क्या हो जाएगा? सिंस डी इज मिड पॉइंट, ए डी उसका हाफ हो जाएगा. तो अगर आप ए डी और बी डी को इक्वल प्रूव कर पा रहे हो तो आपका काम हो जाएगा. हाँ यस, सृष्टि बेचारी कब से पूछ रही है. आई एम सो सॉरी सृष्टि, मैं सोच रहा था आपको बाद में बताऊंगा रह जा रहा है. सृष्टि पूछ रहे सर टेस्ट का टाइम क्या होगा, टेस्ट का टाइम क्या होगा, टेस्ट का टाइम क्या होगा. तो सृष्टि मैंने बोला है कि वो टेस्ट से 1-2 दिन पहले ही पता चलेगा. ओके, अगर आपको 16 को बायोलॉजी का टेस्ट है तो आप 15 को या 14 को पूछ सकते हैं राजेश सर से कि वो कौन सा टाइम पे होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, क्योंकि वो टाइम पे ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा टाइम से होगा. अभी के लिए बस आप ये समझ लो कि 2 आवर्स का टाइम है, 50 मार्क्स की एग्जाम है. 2 आवर्स एंड 50 मार्क्स. ओके, सो यस, सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर. तो क्या हमने यहाँ पे, आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो ट्राई किया था क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? नहीं, तो उन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर पाए थे. फिर हमने दूसरा अप्रोच ट्राई किया था. फर्स्ट अप्रोच हमारा फेल गया था. इट वाज फेल. Avya is telling that my voice is cracking. Is it so? Where is Fiza? Fiza कहाँ चली गई? Okay. Okay, नहीं ना, ग्रेट. तो दूसरा अप्रोच ये था स्टूडेंट्स कि अब हमने इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. पहले हाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, हाफ उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 BD इक्वल टू AC. नाउ हमने BD को डबल किया. BD को डबल करने के लिए हमने BD को एक्सटेंड किया टिल पॉइंट D वेयर BD इक्वल टू DE एंड ये आपका बी हो गया. फिर अब ये दोनों ट्रायंगल को आपने पसंद किया कि अब आपको कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं. सो पहले आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC. फ्रॉम ट्रायंगल ADB एंड CDE इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके वहां से आप, क्योंकि इन दोनों इनको आप डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो. जब भी आपके पास ऐसे ट्रायंगल बनेंगे स्टूडेंट्स, ऑलवेज ये साइड एंगल साइन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज होगा. ये दोनों साइड सेम, ये दोनों साइड सेम, और बीच वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये आपने बहुत बार यूज किया है. फिर वहां से आपने कुछ किया था फ्रॉम साइड एंगल साइड. सीपीसीटी से बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं. और यहाँ पे हाँ, वहां से आपको ये मिला था, वो जो दोनों साइड से एंगल सेम मिला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपने इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया था वहां पे. ओके, आफ्टर प्रूविंग देम पैरेलल, फिर आपने ये दोनों ट्रायंगल पकड़े थे. दैट वाज योर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EBC. मैंने इतने अच्छे से आपको पढ़ाया और इतने अच्छे से नोट्स दिए हैं कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कब आपने क्या चीज ली थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वहां पे आपने अगेन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करके BD, ओके फिजा गॉट इट, वहां पे आपने प्रूव किया था BE इक्वल टू AC.
फिर वहां से उसका हाफ पोर्शन लोगे तो BD आपका हो जाएगा 1/2 AC. इज इट क्लियर? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ओके, तो ये सारे हैं, आप नोट्स या ये अच्छे से देखोगे तो उससे हो जाएगा. इवन एक दिन हाफ आवर तो हमने इसी में निकाला था कि आप नोट्स अच्छे से कैसे देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट. फिर इन ट्राइंगल MNK इफ एंगल M प्लस एंगल N और M प्लस K और MNK आपको फाइंड करना था. ये वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हमने किए थे, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं. जस्ट आप इनको ऐड करके कर सकते हैं और वहां से आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, यहाँ पे अगर कोई प्रूव दैट वाले होती है, एल्टीट्यूड वाले क्वेश्चन एरिया की मदद से आप कर सकते हैं. यहाँ पे CPCT गिव रीजन फॉर योर आंसर, और ये सब आपके आसान से क्वेश्चंस थे. ओके, तो वो चीज मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ. एवरीवन विल इट बी फाइन? जो टफ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ. ओके, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं तो क्या उनका एरिया सेम होगा? हाँ, नहीं प्रज्वल, मोबाइल में वन नोट ऐप आपका बहुत हैंग करेगा, तो मोबाइल में आप उसे ना यूज करें. सो अफशा, कैन यू टेल मी एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सेम होगा या नहीं? यस, राइट. नेक्स्ट, तो उसके एरिया भी सेम होते हैं. फिर यहाँ पे ही आपका इन क्लास एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन 5 लिया था, जिसमें आप साइड एंगल साइड अप्लाई करके हमने उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, विच वाज आल्सो वेरी इजी सम. फिर आपको ये फिगर एक दी गई थी ऐसे ट्रेपेजियम की, इसमें बस आपको ट्रेपेजियम दिया गया है, यहाँ पे ऐसे अंदर कुछ नहीं दिया गया है, ये जो मैंने ब्लू से ड्रॉ किया है. आपको इसको भी यहाँ पे आपको प्रूव करना था AD इक्वल टू CB या BC. तो AD और BC आपके इक्वल कब हो सकते हैं? डेफिनेटली पहले आपको ट्राइंगल यहाँ पे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. यहाँ पे कोई ट्राइंगल है नहीं, तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने के लिए पहले ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे. अब ट्राइंगल बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन थे यहाँ पे, आइदर आप ऐसे ले सकते हो या फिर आप ऐसे ले सकते हो. हमने सारे ऑप्शन कंसिडर किए थे. डू यू रिमेम्बर दैट? ओके, और ये वाला थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो अगर ये आएगा तो अच्छे वाले मार्क्स में आएगा. ये वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पहले ये वाले दोनों ट्राइंगल लेके वहां से उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके वहां से हमने कुछ किया था बाय CPCT, एंड आफ्टर दैट पहले हमने अंदर के दो ट्राइंगल पसंद कर लिए थे, फिर बाहर के दो ट्राइंगल पसंद किए थे, एंड बाहर के दो ट्राइंगल से आपको ये मिला था. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आप आपका स्टार्टिंग पॉइंट याद रख दोगे, हाँ, अगर आप स्टार्टिंग वाला बस पॉइंट याद रख दोगे, मैं अंदर बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो 7.2 7.3 का रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ऊपर से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसा स्टार्टिंग का पॉइंट याद रख लो कि ये दो पॉइंट आपको ज्वाइन करने हैं, ये दोनों साइड्स आपको मिलेगी, फिर पहले अंदर के ट्राइंगल को आपको कंसिडर करना है और फिर बाहर के ट्राइंगल को, तो वहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा. इज इट क्लियर? ऐसे वाले क्वेश्चंस में बस इतना याद रख लें. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, यस और नो, एंड यू कैन टेल मी नो अगर आपको याद नहीं आ रहा है. तो एक बार थोड़ा और अच्छे से देखना, डेफिनेटली विल गेट टू नो. इट इज वेरी मच इजी. ओके, नेक्स्ट. फिर उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन थे, इसमें आपको बस एक स्क्वायर के ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया था और ये दोनों साइड आपको सेम प्रूव करनी थी, PT और QR. तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया एंड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एंगल बीच में 90 + 60 आपका 150 हो गया था. ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है जिसमें आपका जो लास्ट पॉइंट था स्ट्रेट लाइन प्रूव करने वाला, उसका आप 2-3 अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो ये भी हमने किया था. और यहाँ पे सारे ट्राइंगल मैंने कंसिडर करे ही हुए हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा. पहला ऑप्शन था ये दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करना, इन दोनों ट्राइंगल से आपको दो एंगल सेम मिल जाएंगे. फिर दूसरा ऑप्शन था इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर करना, वहां से आपको दो एंगल सेम मिल जाएंगे, दैट वाज एंगल C एंड दिस, एंगल A एंड दिस. फिर यहाँ पे इधर आप एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके या पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट अप्लाई करके आप दिखा सकते हो कि वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सिंगल लाइन है. इज इट क्लियर? यहाँ पे आपके 7.1 का पूरा रिविजन खत्म हो रहा है. नाउ कैन वी सी 7.2 नाउ? You can tell me yes. Now let us see 7.2. अब 7.2 में हमने और दूसरे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखे थे. यस, शिरीषा इज टेलिंग सर बाकी सब छोड़ो, काहूट खेलते हैं. यस शिरीषा, वेट, अभी मैं पहले रिवाइज करा देता हूँ पूरा. विल प्ले काहूट, डोंट वरी. सो वैष्णवी, एवरीथिंग ऑल राइट? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, ग्रेट. So yes, let us continue from here. Angle side angle congruence rule students. Angle side angle आपको पता ही है, दो एंगल और बीच वाली साइड, जिसमें आप अगर दूसरा एंगल पसंद करोगे तो इट विल बी योर एंगल साइड. ओके, उसी को अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपका एंगल साइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने दिखाया था अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम होने ही वाला है, आया ना?
तो अगर मान लो यहाँ पे आपके 70-70 और 50-50 आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हो तो ये आपका एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल। और अगर इसी को आप यहाँ से कंसिडर कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा एंगल एंगल साइड, या फिर यहाँ से कंसिडर कर रहे हो एंगल एंगल साइड। Either if you see clockwise or anti-clockwise, it will be your angle side, isn't it, Radhika? Right. And बीच वाले साइड से आप देखोगे, so it will be your angle side angle. Right. I know you guys are waiting for Kahoot very eagerly. अगर आज हम चैप्टर 7 का रिवीजन वेट, so we can do one thing. अगर Kahoot खेलना है तो आज Kahoot खेल सकते हैं, बट फिर नेक्स्ट क्लास में अगेन वापस चैप्टर 7 और चैप्टर 6 का रिवीजन हमारा कंटिन्यू होगा। बोलो, do you want to play Kahoot? Tuesday and Thursday. Yes, sir. Okay. 16 आपका बायो है तो 17 को हमारी क्लास हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, सो लेट अस डू वन थिंग। 7.2 के थियरम हम खत्म कर देते हैं, फिर हम काउट खेलते हैं। ओके, सो नाउ यस, नाउ विकास इज आस्किंग क्या सर थियरम का प्रूफ आ सकता है एग्जाम में? हाँ, आपको स्कूल में बोला था ना आ सकता है, तो उसी हिसाब से मैंने बोला भी हाँ आ सकता है। तो जो थियरम आपको स्कूल में कराए हैं उसका प्रूफ आ सकता है। अच्छा, श्योर जानवी पी? ओके, नाउ लेट अस सी दिस नाउ। सो चंदन ने भी अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया, वेरी गुड चंदन। नाउ सी नेक्स्ट थियरम 7.2 और थियरम 7.3 आपके आइसोसेलियस ट्रायंगल के ऊपर थे, जो हम 9M 7.3 में हमने देखा था। सो थियरम 7.4 वो आपका था ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पे। जो थियरम के प्रूफ मैंने कराए हैं उसी में से पूछूंगा, उसके बाहर वाला कोई नहीं पूछूंगा। जैसे यहाँ पे ये वाले मैंने आपको नहीं कराए थे, एंगल साइड एंगल, राइट, एंड ट्रिपल एस रूल, राइट, तो वो सारे आपके नहीं आएंगे, डोंट वरी। ये क्यों नहीं कराए थे हमने? क्योंकि आपको स्कूल में नहीं कराए थे। टेल मी, आई थिंक इजंट इट? क्योंकि आपके सीनियर्स को तो मैंने सारे प्रूफ कराए हैं। टेल मी, क्या ये प्रूफ हमने क्यों नहीं देखे थे? क्योंकि आपको स्कूल में नहीं कराए थे। अक्षता इज आस्किंग विल देयर बी क्लासेस ड्यूरिंग एग्जाम्स? नहीं अक्षता, आपको रीडिंग का वैकेशन मिलेगा। सर आई वांटेड टू आस्क वेदर द प्रूफ ऑफ कॉन्ग्रुएंस लाइक एंगल साइड एंगल विल कम और नॉट। वही तो मैं बता रहा हूँ, जो प्रूफ मैंने कराए हैं विकास उसमें से मैं पूछूंगा। अच्छा, आपको भी याद नहीं है? ओके सर, आई टोल्ड दैट it is very long process, not in portion. Okay, so we'll do it afterwards. Okay, बस स्कूल ने आपको प्रूफ नहीं पढ़ाया तो मैंने भी नहीं पढ़ाया। आई थिंक कुछ तो था, हमने डिस्कस किया था, मुझे भी रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा क्या था। एंड अगर ये आपका डिलीटेड पोर्शन है तो डोंट वरी, डिलीटेड पोर्शन है तो आएगा ही नहीं। ओके ना, सो मतलब प्रूफ। सो एसएसएस के अंदर भी आपके पास तीनों साइड सेम होनी चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इट इज सेम एज एंगल साइड एंगल। सो 7.2 के लिए ये 3 प्रूफ है, 7.1 के लिए है, फिर 7.4 में बस हमने RHS इंक्लूड किया था। तो ये सारे हमने कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखे थे। नाउ बी रेडी फॉर काहूट। ओके, ओपन योर काहूट ऐप क्विकली। तो अभी हम आपका काहूट खेलते हैं। अक्षता इज टेलिंग दैट चैप्टर 4 उन्होंने मैथ्स असाइनमेंट में नहीं दिया है। अच्छा, नहीं बट ऑलरेडी हमने चैप्टर 5 डिलीट कर रहे हैं, तो चैप्टर 4 तो हम पूछ सकते हैं ना। चैप्टर 4 आपका डिलीटेड नहीं होगा। ओके, बी रेडी विथ योर काहूट ऐप एवरीवन। आई एम प्रिपेयरिंग काहूट फॉर यू। Yes, Samarth. सब बोलेंगे सर हम काहूट के लिए तो बचपन से रेडी हैं, पहले ऑलवेज 9M 7 triangles।
Okay, Nitin, you can do that. Yes, Anaka. थर्सडे चैप्टर 7 का बाकी का और चैप्टर 6 दो पोर्शन हमारे पास हो जाएंगे. Now quickly everyone join this. आप पिन देख सकते हो. You can see the pin. Virtual background is not working today. Yes, Akshay, you can answer in chat box. No problem in that. Be ready for Kahoot, everyone. चलो रेड काउट ही खेल रहे हो ना. पूर्वी काउट के लिए कहाँ है मोबाइल? हेली काउट ऐप. चंदन, संचित, यस, सात्विक, जयती. Join this quickly. क्या सर? काउट ऐप. Okay. So कैसा लगा आज की क्लास वीडियो ऑन करके? ऑफलाइन क्लास का थोड़ा फील आया? एवरीवन, यस, नव्या शास्त्री. थोड़ा बहुत आपने मेरी जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ऑफलाइन क्लास मेरे अटेंड नहीं किए हैं, तो थोड़ा बहुत क्या ऑफलाइन क्लास वाला आपको फील आया यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स हैं? यस. एक स्टूडेंट तो बिल्कुल ऑपोजिट है. एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नहीं सर बिल्कुल नहीं. बाकी सारे बोल रहे हैं यस सुपर, मजा आया. सो आई वांट योर रिस्पॉन्स. यू कैन टेल मी. आया ना? नंदिनी, यशस, आदित्य भारद्वाज, श्रिया, जयती, सात्विक. यू कैन गिव मी फ्रैंकली रिस्पॉन्स. नो इश्यू इन दैट. अगर नहीं मजा आया तो भी नहीं. ओके. हाँ मुझे पता है. राइट. रिडू कौन है? रिडू कौन है? रिडू कौन है? हु इज रिडू? मैं डिलीट कर रहा हूँ. वापिस आओ. अच्छे नाम से आओ. किसी और को डिलीट कर दिया शायद. अब देख लो. सो लेट अस कंटिन्यू नाउ. सो शैल वी स्टार्ट नाउ एवरीवन? यस, ऑलमोस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास. अच्छा, वास्तव किसका है? जस्ट अ मिनट. ओके, रेड. अच्छा, अच्छा. हदीस टेलिंग सर जब आप पढ़ाते थे तो फ्रेंड्स गप्पा भी लड़ाते थे, लेकिन वो नहीं हुआ. अच्छा, मतलब जो ऑफलाइन क्लास में. सो टू एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था. ठीक है, आप ऑफलाइन क्लास में मिलो मुझे. वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन और ऑफलाइन. प्रहलाद, वो यहाँ पे सेटिंग है एक वर्चुअल बैकग्राउंड का जूम में. हाँ, यस यस यस, यू कैन डू दैट. चलो, so let us start our Kahoot now. 37 students are here. Let me turn off this. So congruency of triangles के ऊपर है आपका students. Okay, Krishna. If two triangles are exactly same in shape, they are always congruent. True or false? अगर शेप सेम है तो क्या वो आपके ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होंगे? ट्रू और फॉल्स? 19 सेकंड्स क्विकली. यस, हेली. यस, भावेश, यहाँ पे कोड इन द एंड, ये कॉर्नर में आप देख सकते हो, राइट कॉर्नर. ओके, डू इट क्विकली. फॉल्स, राइट. शेप के साथ और क्या सेम होना चाहिए? टेल मी. साइज सर. साइज. वेरी गुड. ये अक्षता का आवाज था ना. नाउ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू शेप. अगर दो शेप आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज करोगे? ए, बी, सी, डी. यस हेली, यू आर राइट. ए, बी, सी, डी. यस माही, यू आर राइट. आपने टाइप कर दिया? श्रिया, नंदिनी, आदित्य भारद्वाज, ज्योति. यस. Second one, yes. 38 got this right. Good. Now. अच्छा, if in two triangles, triangle ABC and triangle PQ are, अगर AB equal to RQ है, BC equal to PR है, AC equal to PQ है, तो नहीं यस, उससे मेरे वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है. एंड अब यहाँ से आपका कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया यूज होगा? ओके, या कौन से ऑर्डर में आपका होगा?
सो क्वेश्चन याद है ना सबको, राइट? उससे बस आपको एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया डिटरमाइन करना है. लास्ट ऑप्शन इज नोटा. कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी रैंडमली खेलते हैं कि कुछ भी दबा देते हैं कि अरे सर कुछ तो हो जाएगा, वो नहीं चलेगा. सो नोटा यहाँ पे, नन ऑफ अबो, राइट? एंड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा था यहाँ पे? ट्रिपल एस, राइट? नेक्स्ट. ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर, तो एंगल ए आपका क्या होगा? इज इट इक्वल टू पी क्यू आर और नोटा? क्या वो आपका पी होगा, क्यू होगा, आर होगा या नोटा होगा? यस राइट. आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, राइट? आप काहुटी खेल रहे हो ना? ओके नेक्स्ट. हाँ हाँ गॉट इट. वाह, बेस्ट बेस्ट. पी क्यू आर और नोटा. Do it quickly. Yes, angle P, right? Next. Okay. अच्छा अभी देखो, अभी अगर ये कोई काउट हमने पहले ही खेल दिया है तो अब तो काउट रिपीट ही होंगे, तो नो प्रॉब्लम. What is the full form of CPCT? Corresponding parts of common triangle, corresponding parts of congruent triangle, congruent parts of corresponding triangle, और नोटा. See this question carefully. CPCT का full form क्या है? What is full form of CPCT? Okay, Ahad is telling. Okay, we will see. Ahad, your answer is wrong. This is the correct answer. हम ऑलरेडी देख चुके हैं corresponding parts of congruent triangles, but इसमें भी कई लोग सेम वर्ड्स देख के मिस्टेक कर देते हैं. So let us take podium for today's Kahoot. On third we got Nitin. On second we are having Tanish, and on first Vastav. So Vastav, Tanish and Nitin. Okay, and let us check सबका order. And मतलब इसमें ऐसा ये कुछ नहीं है, मैंने आपको हर बार बोला है जब भी काउट खेलते हैं कि कौन पहला आया कौन लास्ट आया. It is not the rule. Okay, for Janvi S, it was showing late question. अच्छा, वो network error की वजह से होगा Janvi S. You can ignore that. तो okay, Tanish, Vastav, Nitin, then Shirisha, Nandini, Prahlad, Vikas, Vaishnavi, Purvi, Yashash, Yashila, Punit, Anaga, Chandan, Mansa, Avyaya, Akshata, Krishna, Janvi P, Sahana, Samartha, Aditya Ji, Srishti SM, Zilan, Sanchit, Shriya, Navya Sastri, Sakib, Aditya Pawar, Bhavani, and then Darshan, Janvi, Fiza, Radhika, Satvik, Jayati, Prajwal, Meghna, Abhiramya, Heli, and then Raid, Zilan, Yahya, and Bhavish. Okay. Yes, Sirisha is telling you told you would show some video. ha. But it is 3:15, 3:30 आपका क्लास है ना, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा. इट इज वाज मिमिक्री ऑफ माय ऑफलाइन क्लास. सिरिशा, अच्छा आपको याद है, तो वो मिमिक्री ऑफ ऑफलाइन क्लास एक आपके सीनियर्स ने वो टाइम पे किया था. क्लास 9 का लास्ट क्लास था. अच्छा, वांट टू सी नाउ? वेट, ठीक है, वेट, लेट मी ओपन दैट, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो वो जितने लोग लास्ट ईयर मुझसे ऑफलाइन पढ़े हैं उनको पूरा फील आएगा कि मतलब आप देख के बताना कि क्या वैसा याद आया या नहीं, या वो सारी चीज़ें मैं करता था या नहीं. एंड जितने लोगों को दिखा है सबने तो हाँ ही बोला है. एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा नया होगा. हाँ, यस चंदन, बट डोंट वरी, दिस आर द सिचुएशंस जो किसी के हाथ में नहीं होती. कई बार कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं.
Just a minute, I'm opening that video for you, and after that we can end this session. But I'll recording तो एटलीस्ट मैं यही बंद कर दूंगा. Yes, is this the video? Let me check. Okay, yes, got it. Now. Yes, Mai, you can unmute and say something. Tell me. सर डांस क्लास में भावेश आपके एक्टिंग करता था सर. हाँ. ओह भावेश, छुपे रुस्तम. तो सर अभी करवाओ सर, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं. ठीक है, तो भावेश आप अगर मिमिक्री करना चाहते हो तो आप करो पहले, एंड देन तो फिर वो वीडियो दिखाने की जरूरत ही नहीं है. ओके, भावेश नहीं बोल रहे. सर साकिब क्लास में क्या कैन आई स्पॉटलाइट योर वीडियो? वेयर आर यू भावेश? हाँ, बंद कर दिया भावेश. हाँ, क्या अभी करोगे? कैन आई स्पॉटलाइट योर वीडियो? सर करवाओ सर ऐसा. सामने. आर यू कंफर्टेबल? रेड भी अच्छी करते हैं सर. रेड भी अच्छा. कितने लोग मिमिक्री करते हैं पीछे? आज सारे आ रहे हैं हाथ के नीचे. बोलो. और कौन? कभी नहीं करता सर, झूठ बोल रही है सर. झूठ बोल रही है. अच्छा. ओह वेरी बोल रही झूठ. भावेश तो करता है सर, उससे से पूछ लो. भावेश करके दिखा यार. सुकीर्ति तो मुझे पता है. हाँ, तो ठीक है सर. हाँ बोलो. सर साकिब भी करता है. साकिब भी करता है. ठीक है. नहीं सर, मैं नहीं सर. ठीक है, तो अभी मैं आपको वो वाला सब करते हैं सर. सर वीडियो दिखाओ. हाँ, अक्षता. यस, ये अक्षता की आवाज सुनने के लिए सर जयती सेशन सर की करती है सर. हाँ, वो अब तो करनी ही पड़ेगी. ठीक है, चलो. सो वो वाला वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, एंड तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको मिमिक्री करनी हो तो हर क्लास के एंड में एक एक मिमिक्री रखेंगे. सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा. हाँ सर, साकिब विष्णु सर की भी करता है. वाह, ठीक है. सबकी है, हम मिमिक्री कराएंगे. झूठ बोल रहा है सर. जस्ट अ मिनट, कैन यू सी दिस वीडियो? तो ये आपके सीनियर्स हैं जो क्लास 9th में थे लास्ट ईयर. ओके, एंड जब एंड मोमेंट आता है, आपको पता था आपका जनवरी मंथ, राइट? मुझे बहुत सारे आंसर शीट चेक करने होते थे. तो ये लास्ट दिन होता है जब आपके बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम चलते हैं, और वहाँ पे मैं आंसर शीट चेक कर रहा था. तो यहीं पे मैं बैठ के आंसर शीट चेक कर रहा हूँ. मुझे रिजल्ट देना था, और यहाँ पे ये थोड़ा मिमिक्री कर रहा था. सो ही इज मोहन. सो लेट अस सी दिस. ओके सर, ये सबका मिमिक्री करता है सर. हाँ, ये सबका मिमिक्री करता है. इज गुड. मतलब बहुत अच्छा आर्टिस्ट है. मैंने तो बोला भी आगे बढ़ना ऐसे. ओके, हाँ ठीक है. माही प्रिपेयर करो, फिर नेक्स्ट टाइम आप ही शुरू करो पहले. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. म्यूट योरसेल्फ. थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा डेफिनेटली, बट स्टार्टिंग में होगा, वो नहीं होगा. Okay, shall I increase more volume? Just a minute. आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 25 सेंटीमीटर आया ना? हाँ सर. रेडियस इज 5.6 सेंटीमीटर क्यूब. अरे भाई क्या क्या है? क्या बातचीत कर, बोला ना, लगाऊंगा ना अभी. फॉर्मूला बुक. भी करो. क्या 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 लगाऊंगा ना. क्या क्या कैसे बैठे? स्टैंड अप अंकित. कितने बार लिखी है? 10 बार. 100 बार. आया ना. Sit straight. If you are 20, sit like 90.
वो कैसे मिलती है ना ये सिखाए ना राजेश सर अरे भाई बातचीत पर जागो ग्राहक जागो express 2 is equal to 0 iron ना सर so we have to find x cube plus 1 by x iron Warning not allowed. नेक्स्ट ओके तो बस ये था। आई होप कैसा था, मैंने सारे 1 मिनट कमेंट नहीं पढ़े। सो हाँ, मैं जब भी ये वीडियो देखता हूँ मैं तो बहुत हंसता हूँ। सो प्लीज सेंड द लिंक ऑफ दिस वीडियो। लिंक नहीं है, ये वीडियो ही है। हाँ, ही डिडंट थ्रू चॉक, चॉक में थोड़ी मारता था। आदित्य 10 सेशंस आर एक्टिंग। ओके आदित्य, सर शायद एक मिसिंग है। क्या मिसिंग है? आप बोल रहे थे ना ओ अक्षता क्या, ऐसे कुछ बोल रहे थे ना सर आप। तो वो अक्षता को ही बोलता हूँ ना, उसे कैसे पता होगा? ओके ठीक है। सो दिस वाज द फाइन। चलो मजा आया ऑफलाइन क्लास के? याद आया जो मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं और जो नए स्टूडेंट हैं, तो इस तरीके से कुछ हमारे ऑफलाइन क्लास चलते थे। सर वो भी मिसिंग है सर, वो जब आप कुछ गलत लिख देते थे तो फिर कोई बोलता था सर गलत है करके, फिर आप रब करके। सर ये भी मिसिंग है सर, जागो ग्राहक जागो। हाँ वो था बीच में। तो ये और सर वो हाँ या ना बोला लेकिन यस और नो यस नहीं और बोला। नो। सर भावेश ज्यादा अच्छी करते हैं, उससे करवाओ आप। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना, दिस वाज जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। तो नेक्स्ट टाइम से करो, हर कोई एक एक। जब वो बोला ना सिट स्ट्रेट, तो भावेश तब स्ट्रेट हो गया था। तो वो वाला पोर्शन मैंने रिकॉर्ड किया है। यू कैन सी इन द रिकॉर्डिंग। Okay, so bye everyone. This is it for today's class. Right. See you in the next class. Bye everyone. So I hope आज आपको ऑफलाइन क्लास का फील। बाय सर। Yes. Bye everyone. So be ready with your mimicry, जिसको भी मिमिक्री करनी हो नेक्स्ट क्लास में। Okay. So see you in the next class.